ଶୁଭିଲାଣି ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ପଦଧ୍ୱନି। ଫୁଲ୍ ୱାର୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ? କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା? ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ଚୀନ ତାଇୱାନ ୱାର୍? ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ ନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାର କାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ସମୁଦ୍ରରେ ୱାରସିପ୍, ଆକାଶରେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆଉ ମାଟିରେ ଗର୍ଜୁଛି ତୋପ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ। ତାଇୱାନର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପେଙ୍ଗହୁରେ ଚାଲିଛି ସମରାଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଚୀନ ସେନା ଆଟାକ୍ କରେ ତାହେଲେ କେମିତି ରୋକିବ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଇୱାନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରିଲ୍ ବା ସମରାଭ୍ୟାସ, ନା ତାଇୱାନ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? କାରଣ ଏଥର ତାଇୱାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ ବନ୍ଧୁକ, ମିସାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଇୱାନ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବ, କେମିତି ଏଥିରୁ ବାହାରିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି। ତେବେ ଚୀନ ସତରେ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଇହେବନି। ୟୁଏସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଥିଲା ଭଳିଆ ସଂକେତ ମିଳୁନାହିଁ। ବେଜିଂ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଇୱାନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଚୀନ ନିଜର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବେଶ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଇୱାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୂଳ ବିବାଦକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ବେଜିଂର ଦାବି ଯେ ତାଇୱାନ ହେଉଛି ଚୀନର ଏକ ଅଂଶ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଇୱାନକୁ ଚୀନ ନିଜ ସହ ମିଶାଇ ଦେବ ବା ଏକୀକୃତ କରିବ। ତାଇୱାନ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଲଗା ସରକାର, ସେନା, ନିର୍ବାଚନ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହି ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ହିଁ ଆଜି ତାଇୱାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାଁ ଆସୁଛି, ଆମେରିକା। ତାଇୱାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ସହ ଆମେରିକାର ଗଭୀର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେସନ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ଯଦି ତାଇୱାନ ଉପରେ ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇନଭେଜନ୍ କରେ ବା ସେନା ଧରିକି ତାଇୱାନରେ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଚୀନ ବନାମ ତାଇୱାନରେ ସୀମିତ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ଚୀନ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ, ତାପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍, ଯାହାକି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ର, ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ ଏବଂ ସ୍ଥଳପଥରେ ଘେରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ଚୀନ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଇୱାନ ସେନା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବ। ଯଦି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ୟୁଏସ୍ ଚାଇନା କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ଜାପାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କିମ୍ବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯଦି ଜାପାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କିମ୍ବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାରା ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ
केवल बंदूक और मिसाइल उपरे नुहे विश्वर अर्थनीति उपरे पड़िबो। ताइवान स्ट्रेट दे प्रति वर्ष बहु परिमाण रे विश्व वाणिज्य कारोबार हुए। जदि युद्ध कारणरू एही समुद्र पथ व्याहत हुए, एही समुद्र पथ जदि बंद हुए, तेबे जहाज गुड़िक अन्य रूट रे जीवाकू पड़ी पारे। और तार परिणाम कौन होबो? तार परिणाम स्वरूप शिपिंग कॉस्ट बढ़िबो, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़िबो, सप्लाई चेन भांगी पारे, सारा विश्व रे दरदाम बढ़ी पारे। यार उदाहरण आपण माने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे जो युद्ध स्थिति जोगु जो भली व्याघात होईची शिप जीवा आसीबा, आ तार परिणाम स्वरूप जेमिति आपण क्रूड ऑयल प्राइस बढ़िबा, विभिन्न देश रे पेट्रोल प्राइस डीजेल प्राइस बढ़िबा, यह आपण माने देखि सरिचंती। यह केवल सही इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़िबा आउ जो यातायात पई अन्य रूट आपणेबा, लंबा रूट आपणेबा जोगु ए भलिया स्थिति सृष्टि होउची। आउ यही जो पॉसिबल वार रो स्थिति कौन हो पारे, तार द्वितीय कारण होउची चिप। आजिर स्मार्टफोन, कार, कंप्यूटर आउ सबु प्रकार सर्भर, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्राय प्रत्येक आधुनिक टेक्नोलोजी सेक्टर पाई सेमीकंडक्टर आवश्यक। जहाँकि अनेक लोक हुए तो आम जो मैंने मोबाइल फोन स्मार्टफोन यूज करूँ आम जापारूँ, किंतु यही सेमीकंडक्टर किंतु यही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एते बड़ हो सारी जे ताहा ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करि पारे। ताइवान विश्वर एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रो एक प्रमुख केंद्र। तेणु ताइवान रे युद्ध माने केवल एक द्वीपर युद्ध नुहे, यह विश्वर टेक्नोलोजी सप्लाई चेन पाई मध्य एक बड़ झटका हेबो। एबे आसंतु आमे नजर पकाइबा जे जदि चीन ताइवान युद्ध हुए, पड़ोसी देश युद्ध को ओल्लाउची, भारत उपरे कौन प्रभाव पड़िबो? चीन ताइवान युद्ध रे भारत सीधा सड़क युद्ध रे एंट्री करिबो कि एभली प्रश्न भी आसुची, कारण यह द्वारा भारत भी प्रभावित हेबो। किंतु वर्तमान विशेषज्ञों अनुसार कौनसी उत्तर यार हाँ नाई रे देई हेबनी, किंतु भारत यार प्रभाव रु दूरे मध्य रही पारिबो नहीं। प्रथम झटका आसीबो जो बिजनेस आउ सप्लाई चेन रे। चीन सह भारतर बहुत बड़ वाणिज्यिक संपर्क रही। इलेक्ट्रोनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स आउ अन्य इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स पाई भारतीय शिल्प एशियन सप्लाई चेन उपरे निर्भरशील। युद्ध हेले एही सप्लाई चेन व्याघात हेबो, एही सप्लाई चेन बाधा प्राप्त हेबार आशंका रही। द्वितीय बड़ प्रभाव कौन? फुएल आउ दरदाम। जदि इंडो पैसिफिक रे बड़ सामरिक संघर्ष हुए, वार हुए, शिप रूट को प्रभावित करे आउ अनिश्चितता बढ़े, ताहले निहाती भावे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़िबो, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट रे चाप पड़िबो, आउ यह परोक्ष प्रभाव भारतीय अर्थनीति और साधारण लोकंक उपरे मध्य पड़िबार संभावना रही। किंतु एठारे भारत पई गोटिए बड़ सुजोग मध्य सृष्टि हो पारे बोली किछि विशेषज्ञ कहउचंती। केमिति चीन ताइवान युद्ध हेले भारत पई गोटे सुजोग सृष्टि हो पारे, भारत पई लाभ हो पारे। जदि अमेरिका, जापान, यूरोप एवं बड़ टेक्नोलोजी कंपनीज चीन और ताइवान उपरे निजर सप्लाई चेन डिपेंडेंसी कमाइबाकू चाहती, तेबे इंडिया एक विकल्प भावे मैन्युफैक्चरिंग हब भावे आगकू आसी पारे। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एवं एडवांस टेक्नोलोजी रे भारत निज स्थान को आहुरी मजबूत करिवार सुजोग पाई पारे। किंतु भारत पई सबुठु बड़ चैलेंज हेबो सुरक्षा, सिक्यूरिटी। चीन सह भारतर सीमा विवाद बहु पुराणा आउ संवेदनशील मध्य। ताइवान स्ट्रेट रे जदि चीन और अमेरिका मध्य बड़ संघर्ष हुए, तेबे भारत को निजर नॉर्दर्न बॉर्डर ठारू इंडियन ओशियन पर्यंत प्रस्तुति आहुरी मजबूत करने को पड़ पारे। चीन भारत सीमार निश्चित भावे नुआ मोर्चा खोलिबो एपरी कहिबार आधार नहीं, किंतु भारत को वर्स्ट केस सिनारियो पाई प्रस्तुत रहिबाकू पड़िबो। आउ एही कारण रु ताइवान रो आजिर समराभ्यास भारत पाई मध्य गोटे वार्निंग सिग्नल कहले अत्युक्ति हेबने। कारण ताइवान एबे जो प्रस्तुति करुची सेथिरे गोटे मेसेज स्पष्ट, आधुनिक युद्ध बा मॉडर्न वारफेयर केवल सीमारे लड़ा जाए नहीं। युद्ध हेले इंटरनेट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सप्लाई चेन सबू युद्धर अंश हो जाए, सबूजाक प्रभावित हुए। शेष गोटे प्रश्न जे चीन केबे ताइवान उपरे आक्रमण करिबो कि, अटैक करिबो कि, यार सठिक उत्तर
सीधा सड़क उत्तर कहा पाखरे नहीं, किंतु चीन अनप्रेडिक्टेबल, चीन रो रणनीति कहा को जना नहीं। किछि दिन पूर्व आपण माने भी सुनिथिबे जे भारतीय सीमारे मध्य चीन रो फाइटर जेट संख्या बढ़ी चली। तेणु चीन कौन प्लान करुच्ची ताहा कहिबा अन्य कोनोसी देश किंबा विशेषज्ञों पाई एते सहज हेबो नहीं। एबे चीन पाई युद्ध हेउची सबुठारु बड़ और गोटे विकल्प बोली कहा जाई परिबो, किंतु जो सामरिक चाप, युद्धाभ्यास और ताइवान को घेरिबार क्षमता देखाई चीन निजर शक्तिर प्रदर्शन करुच्ची। अन्यपटे ताइवान मध्य स्पष्ट करुच्ची जे आक्रमण हेले से चुप बसिबो नहीं एवं जदि केबे एही दुई शक्ति मध्यरे सतरे युद्ध आरंभ हो जाए तेबे यार शब्द केवल ताइवान रो समुद्र तटरे शुणा जिवो नहीं। यार प्रतिध्वनि वाशिंगटन रु टोकियो, बेजिंग रु दिल्ली आउ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री रु भारतीय बाजार पर्यंत पहुँची पारे। तेणु ताइवान रे चलीथिबा एही समराभ्यास, एही युद्धाभ्यास केवल एक मिलिटरी ड्रिल भावे देखिबा ठीक हेबो कि नहीं ताहा अनेकंक मनरे सही प्रश्न आसुची। यह एशियार आगामी जिओपॉलिटिकल झड़ पूर्वर एक चेतावनी की। यही वीडियो देखिबा पई आपण न्यूज रूम को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेयर करंतु। धन्यवाद।